We are in now practice set, miscellaneous problem, chapter 6. So miscellaneous problem set we saw. We are going to start. It's multiple choice questions, page number 164. So let's start. Find the correct answer from the alternatives given. I will give the answer, I'll explain it with explanation, of course. Question number 1. First, the person of zero blood group are 40%. There are 40% of zero group. How many? 40% people. The classification of person based on blood group is to be shown by a pie diagram. We have to show it on the pie diagram. What should be the major angle of what will be the measure of central angle? कोई बात नहीं, देखो, measure of central angle, I call it theta. This will be O group, blood per persons upon, say the 100 they say, per 100 into 360. Percentage means per 100. 100 में कितने? Percentage ना 40%, मतलब 100 में. So this will be 40 upon 100 into 360. 0, 0, 0, 0 गया. ये भी 0 गया. 6 4s are 24. 3 4s are 12 plus 14. So answer is 144. Answer 1 is 144 degrees is the answer. That is answer D. Now we go to question number 2. Different expenditure incurred on the construction of a building are shown by a pie diagram. The expenditure on cement was 45,000. So ये पहला था. Now question. Cement was how much? 45,000. As shown by the sector, the central angle theta of cement for cement was 75 degrees. Theta, central angle for cement in the pie diagram was 75. You have to find total expenditure. Now theta equal to expenditure on cement upon formula, this is total expenditure into 360. हमें total expenditure find करना है. So this will be 75 degrees equal to 45,000 upon ये total expenditure x है 360. So what will be x? इसको x को यहाँ लाओ और 75 नीचे लेके जाओ. 45,000 upon 75 into 360. So 36 you split into two parts. 36 into 10. So 5 2s are 5 1s are 5, 5 5s are 25. So we have 15 5s are 75. 5 15s are 75. 5 2s are 10. So 15 1s are 15. 15 3s are 45. So multiply all this. We get 36 into 3, 108. 108 into 2, 216. So 216,000. 2,16,000 is your answer. So the answer is A. Answer is A. Now we go to third answer.
आंसर 3. It's question 3, that is. Cumulative frequency in a grouped frequency table is used. Cumulative frequency used in only one case. Please understand, cumulative frequency is used only in one case, and that case is to find median. Okay, to find median. So उसका आंसर है B. थर्ड का आंसर है मीडियन. फोर्थ अभी, द फॉर्मूला टू फाइंड मीन फ्रॉम अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी distribution table, x bar a plus summation of fi ui upon summation of fi into h. In the formula is in this that mean जो दिया हुआ है formula दे, उस formula में what is ui? Now please understand what is ui. ui we write di upon g. यह हमें मालूम है, पर डी आई क्या है? डी आई इज एक्स आई माइनस ए. डी आई इज एक्स आई माइनस ए. देखो हम लोग कॉलम करते थे, पहले डी आई लेते थे, उसके बाद यू आई लेते थे. ओके, पहले हम लोग ये कॉलम बनाते थे, उसके बाद ये कॉलम बनाते थे. ओके, सो ये इसमें डाल दो. सो व्हाट इज यू आई? यू आई विल बी एक्स आई माइनस ए अपॉन जी. देखो यही फॉर्मूला है ना. Yes, that is C. A नहीं है, B नहीं है, C है और D नहीं है. So C is the formula. So formula क्या है? फोर्थ में xi minus a upon g. ये उसका फोर्थ आंसर है. ये है आपका, मालूम है क्या? प्रैक्टिस सेट नहीं है ये. मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ये है. फोर्थ अभी फिफ्थ लेते हैं. डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर किलोमीटर में दिया है 12, 14, 14, 16. ओके, सब दिया हुआ है. द मीडियन ऑफ अ डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर शोन इन द अबो डेटा इज इन अ ग्रुप. अभी मीडियन के लिए देखो, मीडियन के लिए एन फाइंड करना बहुत जरूरी है. तो इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ के थोड़ा सा एक आइडिया करना लेना पड़ेगा. ऐसे अगर तुम लोगों की हैबिट हो गई हो, प्रैक्टिस अच्छा किया है ना, तो ओरली भी कर सकते हो. तो ओरली हम लोग करेंगे. देखो 11 है, उसके बाद 12 है, 20 और 7 है. ये कौन सा ग्रुप है? 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20. तो CF क्या होगा इसका? 11, 23, 43, 50. अभी ध्यान दो, व्हाट इज n? n फाइंड करो. 50 है. Therefore what is n upon 2? 50 upon 2 is 25. अब 25 कहाँ आएगा? CF में देखो, ये 23 के बाद आएगा. ओके, और 43 के पहले आएगा. इसका मतलब 23 के बाद सब है ना, इसमें आते हैं. तो दिस इज योर मीडियन क्लास. तो उन्होंने वही पूछा है, फाइंड द मीडियन इज डिस्टेंस कवर्ड शोइंग द. ओके, फाइंड द डेटा इज इन द विच ग्रुप. कौन से ग्रुप में है? तो ये ग्रुप में है. 16-18. ये आंसर है इसका, इन दिस ग्रुप. अभी आते हैं क्वेश्चन 6 पे. क्वेश्चन 6. एक मिनट, हाँ पढ़ता हूं. आई विल रीड द क्वेश्चन. नंबर ऑफ ट्रीज दिया हुआ है. देखो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 10 लेन. ओके, द अबो डेटा इज टू बी शोन बाय, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बताना है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
to show number of students in the class 4/4-5 R. Now तुम्हें 4-6 जो है ना, इसको कॉलम में, ये जो कॉलम है that has to be represented in, ये 4-6 का फ्रीक्वेंसी 8 है, याद रखो। फ्रीक्वेंसी कितना है? 8। ये y में आएगा, ये y कोऑर्डिनेट है फ्रीक्वेंसी। x कोऑर्डिनेट में क्या होगा? क्लास मार्क। क्लास मार्क 4 और 6 का क्लास मार्क कितना है? 4 + 6/2, दैट इज 10/2। कितना आता है ये? 5। तो ये आपका होगा x एक्सिस। तो क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे? 5, 8, 6 आंसर। With that, our multiple choice question gets over. Now we go to actual questions. Question number 2, जो multiple choice नहीं है, वो descriptive है. So let's go for miscellaneous problem का question number 2. So now we are going to solve all descriptive type of questions. पहला क्वेश्चन क्या दिया है? देखो, the following table shows income of farmers in a group season. Okay, in a group, okay, in a grape season. Sorry, जरा चश्मा है ना, स्पेक्स से, इसलिए प्रॉब्लम होता है। इन अ ग्रेप सीजन, तो इनकम ऑफ द फार्मर्स इन अ ग्रेप सीजन, फाइंड द मीन ऑफ द इनकम। तो आपको मीन ऑफ द इनकम फाइंड करना। तो पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। मीन के लिए आप जानते हो क्या करना है। ये मेरे ख्याल से डायरेक्ट डेटा बड़ा है, क्लास मार्क बड़ा हो जाएगा। क्लास मार्क 15, 35, 45 ऐसा है। तो हमें इसको हम लोग एज्यूम मीन मेथड से करने की कोशिश करेंगे। अगर एज्यूम मीन भी बड़ा होता है तो हम लोग इससे डेविएशन लगेंगे, दोनों में से। वैसे तुम, आप ऐसा उन्हें बोला नहीं है, एनी 3 यू कैन डू, लेकिन दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। कैलकुलेशन बड़े हो जाएंगे और टाइम वेस्ट होगा। एज्यूम मीन मेथड से करते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या दिया है देखो। उन्होंने अपने को क्लास दिया है। क्लास में उन्होंने क्या दिया है अपने को? अच्छा, ये थाउजेंड्स में है, 1000 रुपीज में, तो फाइनल आंसर 1000 में आ गया, याद रखो। ये दिया है इनकम, ये है इनकम रुपीज में। ओके, थाउजेंड्स, ये रुपीज में। क्लास दिया है, क्लास दिया है, मीन में हमेशा क्लास मार्क आएगा। तो दूसरा क्या है अपना? क्लास मार्क। व्हाट इज क्लास मार्क? एक्स आई। अभी मैंने आपको क्या बोला है? हमें एज्यूम्ड मीन लेना है। एज्यूम मीन लेना है मतलब हमें डी आई लेना पड़ेगा। ओके, व्हाट विल बी डी आई? इट विल बी एक्स आई माइनस डी। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी, एफ आई, और लास्ट में हमें लेना पड़ेगा एफ आई डी आई। चलो, अभी इसके अंदर हम लोग सब टेबल भरते हैं। पहला क्या है? क्लास। क्या दिया है देखो, 20 to 30 वो कंटिन्यूअस है। 20 to 30, 30, 40 कंटिन्यूअस है। 80 तक हमें जाना है। ओके, 80 तक मैं लिख रहा हूं अभी। 20-30, इसके बाद 30-40, इसके बाद 40-50, इसके बाद 50-60, इसके बाद 60-70,
और इसके बाद 70-80 टोटल नीचे। अब फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। सी व्हाट टू इंफॉर्मेशन दे गिवन अस क्लास, तो मैंने क्लास लिख लिया। नाउ वी राइट डाउन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम अंदर आराम के साथ करते रहेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है 10, उसके बाद फ्रीक्वेंसी 11, 15, 16, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 18 एंड 14। समेशन ऑफ एफ आई हमें फाइंड करना है। फाइव प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 24, 4 टू कैरी। ये 2 3 4 5 6 7 8 84 is summation fi। जो डेटा whatever डेटा जो डेटा दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया। समेशन भी टोटल फ्रीक्वेंसी निकाली। अभी हमें जो करना है, अभी हमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, अभी हमें आगे बढ़ना है। जैसे हम whatever I taught you, मैंने जो सिखाया आप लोगों को। पहला क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 30 प्लस 20 50, 50 डिवाइड बाय 2 इज 25। बस एक एडिशन और डिवीजन एक ही। उसके बाद हमें नहीं करना है, क्योंकि वो करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम मतलब वेस्ट होता है। तो 30 माइनस 20 के साथ 10 का डिफरेंस है, तो ऊपर से नीचे 10 10 10 10 ऐड करते जाओ, बस फटाफट मिल जाएगा। 25 35 45 55 65 75। कितना फास्ट हो गया देखो। अब ये ऐड करो डिवाइड करो, टाइम लगता ना। एवरी सेकेंड एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। अभी डीआई लो। अभी इसमें से हमें एज्यूम मीन लेना है। कोई भी एक एज्यूम मीन आप ले लो। आप 45 ले सकते हो। देखो यहां ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 में से ये इवन है ना, तो 2 में से कोई भी एक आप ले लो। आई एम गोइंग टू गो फॉर 55। आप 45 ले करो। सो आई डू, मैं क्या लिखता हूं, xi माइनस 55। तो ये होता है लेट दी assumed mean a equal to 55। अब सॉल्व करो, फाइंड करो, डी फाइंड करो, डी वैल्यूज फाइंड करो बेटा। 25 माइनस 55 ये आता है माइनस 30। 35 माइनस 55 माइनस 20। 45 माइनस 55 माइनस 10। 55 माइनस 55 0। 65 माइनस 55 10। 75 माइनस 55 20। अभी मल्टीप्लाई करना है। यहां यह आएगा माइनस 300 माइनस 220। 11 2s are 22 and then put 0 minus 15 1s are 15 and 0। 16 into 0 is 0। 18 10s are 180 and 14 2s are 28 and put 0। now इसका हमें फाइंड करना है समेशन ऑफ एफ आई डी आई। समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आता है देखो। 300 प्लस, ये ऑल आर सब्ट्रैक्शन हो तो सब सब्ट्रैक्शन है, तो पहले उनको ऐड करो और माइनस की वैल्यू बाजू में निकालो। 300 प्लस 220 इज 5 माइनस 520 माइनस 520 माइनस 170 इज माइनस 670। ये माइनस 670 हो जाएगा। देखो 0 से 5 प्लस 2 7 एंड 3 4 5 6, और ये कितना आएगा
0 plus 0, 0. 8 plus 8, 16. 2 plus 1, 3 and 4. चलो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये पॉजिटिव है, 460 इज पॉजिटिव, 670 इज नेगेटिव, इनको ऐड करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें व्हाट इज द बिगर टर्म, बिगर वैल्यू कौन सी है 670, तो माइनस लिख दो, तो माइनस लिख दो पहले और लिखो 0 minus 0, 0, 7 minus 6 is 1, 6 minus 4 is 2, तो ये आता है आपका माइनस 210, minus 210. Here summation of Fi is equal to 84. Summation of Fi di is minus 210. Now start and find d bar. हमें d bar find करना है। d bar के लिए क्या होगा, summation of Fi di अपॉन समेशन ऑफ Fi, तो ये था माइनस 210 अपॉन 84, तो 7 1 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, so this was minus 30 upon 12, so 3 4 जा 3 10 जा minus 10 upon 4, 2 2 जा 2 5 जा, final answer is minus 2.5. What is mean? Mean is x bar is equal to a plus d bar. A plus d bar. A कितना है 55. So it is 55 plus minus 2.5. So it is 55 minus 2.5 will be 52.5. This is your मीन, लेकिन याद रखो हम जो मीन निकाल रहे हैं वो 1000 में है, इट इज इन 1000, सो दिस विल बी 1000, सो मीन एक्स बार इक्वल टू 52.5 इंटू 1000, सो 3 शून्य, 52.5 है तो 30, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो 0 0 डालेंगे, तो 52,500, 52,500 is the amount, is the mean. So final answer लिख लो, the mean of income. The mean of income is rupees 52,500. Question number 2 completed. Now we'll go to question number. कौन सा क्वेश्चन पे जाएंगे अभी हम लोग? क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 पढ़ो, रीड क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है? The loans sanctioned by the bank for construction of farm ponds are drawn in the following table. Find the mean of the loans. ये भी बड़ी वैल्यूज हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से ये भी थाउजेंड्स में होगा और ये मेरे ख्याल से
80 और 90 के ऊपर जा रहा है और नीचे भी फ्रिक्वेंसी भी बड़ी है, तो इसको हम स्टेप डेविएशन से करेंगे, थोड़ा अलग होगा, थोड़ा, लेकिन कुछ नहीं होगा, एक कॉलम बढ़ेगा और कुछ नहीं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले हम लोग लिखते हैं जो भी दिया है उन्होंने, सॉल्यूशन 3, क्या क्या दिया है, पहला है क्लास। ये क्लास क्या है देखो, इट इज लोन अमाउंट, ये लोन अमाउंट है इन 1000 रुपीज, लोन रुपीज 1000 के मल्टीपल में। नेक्स्ट विल बी ऑफ कोर्स क्लास मार्क विच इज XI, which is XI। XI के बाद क्या है, हमें एक एज्यूम में लेना है A, तो DI की वैल्यू आ जाएगी, यह आएगा आपका DI विल बी XI माइनस E। ओके, DI के बाद क्या होगा, UI। UI के लिए क्या चाहिए, DI अपॉन G। उसके बाद क्या चाहिए अपने को, FI, एंड देन क्या आएगा, FI। कॉलम रेडी है। अब इसके अंदर हमें जो इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में वो डालनी है, बाकी सब हमें कैलकुलेट करना है, बाकी ये कॉलम्स। ओके, चलो पहले क्लास लिख देते हैं और उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालते हैं एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। तो क्लास क्या दिया है, क्लास दिया है 40, 50 से लेकर 90 तक, तो 40-50 क्लास कंटिन्यूअस है ना, देखो पहले, यस क्लास कंटिन्यूअस है तो कोई टेंशन नहीं। 60, 60-70, 70-80, 80-90, below we have total। Now fill the frequency column। frequency column में क्या दिया है उन्होंने, 13, 20, 24, 13, 20, 24, लास्ट 3 में क्या है, लास्ट 2 में 36 and 7, 36 and 7। सो समेशन FI कितना होगा, 13 + 7 20, 20 + 20 40, 40 + 24 64, 64 + 36 100। ये हमें मालूम है। सो वी हैव रिटन ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइड टू अस इन अ क्वेश्चन, वो हमने लिख दिया है। इसका फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है n या समेशन ऑफ FI जो हमें फॉर्मूले में लगने वाला है, विल नीड दैट समेशन ऑफ FI, वो भी हमने कैलकुलेट किया। अभी हम बाकी के वैल्यूज इसमें कैलकुलेट करके डालते हैं। मैंने आपको पहले बोला है फाइंड क्लास मार्क एक ही, 50 + 40, 50 + 40 कितना, 90, 90 को डिवाइड बाय 2 45, पहला मिल गया। अब बाकी का ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये जो क्लास मार्क है ना, ये जो है ना, ये जो क्लास है पहला, 50 - 40 का डिफरेंस कितना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस कितना है,
50 माइनस 40 इज 10, तो वो 10 ऊपर से नीचे ऐड करते जाओ और वैल्यूज लिखते जाओ। तो 45 के बाद ये आएगा 55 ऐड करो, 55 प्लस 10 इज 65, 65 प्लस 10 इज 75, 75 प्लस 10 इज 85। अभी DI की वैल्यूज निकालेंगे। ओके, अभी निकालेंगे DI वैल्यूज। DI के लिए क्या करना, अच्छा पहले एज्यूम में लेना पड़ेगा उसके लिए। तो ये कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, तो बीच में की वैल्यू 65, तो लेते हैं लेट assumed mean A इक्वल टू 60। चलो हमने 65 ले लिया, अब आगे बढ़ो। अब क्या करना है, अब है माइनस करना है। 45 माइनस 65 ये होगा -20, 55 माइनस 65 ये होगा -10, 65 माइनस 65 ये होगा 0, 75 माइनस 65 ये होगा +10, 85 माइनस 65 ये होगा +20। नाउ यू वांट GCD ऑफ दिस वैल्यूज। नाउ GCD ऑफ DI, ये G, इसको क्या लेते हैं हम, 10 ले लेते हैं, चलो इजी पड़ेगा वो। तो इसको डिवाइड करो, 20 डिवाइड बाई 10 -2, -10 डिवाइड बाई 10 -1, 0 10, सॉरी ये 1 और ये 2। GCD हमें वो लेना है ताकि यहां हमें इंटीजर्स मिले, फ्रैक्शंस नहीं मिले। ओके, अगर मैं 20 लेता आपको यहां तो मुझे मिलेगा 1, लेकिन यहां मुझे 0.5 मिलता। यू शुड नॉट टेक GCD where you get this UI values as fractions। हमें इंटीजर चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए आसान होता है। ये सब हम कल कर रहे हैं मालूम है, तो ये आसान हो जाए, तो कॉम्प्लिकेशन नहीं करना, जितना आसान ना रखना, इसलिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करो, -26 -20 ये 0, 36 14। अभी ऐड करो ध्यान से, देखो 26 -26 -20 इज -46, और ये है 36 प्लस 14, ये आता है आपका, सॉरी ये आता है आपका 50, 10 50 माइनस करो, ये प्लस है 4 आता है। सो समेशन ऑफ FI UI इज +4, ये +4 है, तो लिखो यहां हियर summation of FI is 100, summation of FI UI is 4। अभी हमें यहां U bar फाइंड करना है, therefore U bar equal to summation of FI UI upon summation of FI, कितना है 4/100, therefore what will be U bar, U bar will be 0.04, ये अपना U bar आ गया। अभी हमें मीन पे जाना है, therefore मीन x बार इक्वल टू A प्लस U बार इंटू G, ये आपका फॉर्मूला है। A की वैल्यू है 65 प्लस U bar is 4 into G is 10, so it is 65 plus 40 is 105 into 1000, therefore x bar equal to 105 into 1000, so x bar is rupees 1,05,000। सॉरी, U बार इज 0.04, क्या कर रहे हैं हम लोग,
U bar is 0.04 into 10. So it will be 0.4. So 65.4. बोले इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ गई? बिकॉज ये वैल्यू है ही नहीं. सी द वैल्यू व्हाट यू गेट शुड बी इनसाइड दिस. इसमें होना चाहिए, नहीं है. 105 वॉज बियॉन्ड दिस. तो मैं आई वॉज सरप्राइज कि कुछ तो गड़बड़ की है हमने. ना आएंगे इन योर हिंट. याद रखो इसमें इसके अंदर ही होगी वैल्यू, याद रखो. तो इसको ये है इंटू 1000. 65.4 इंटू 1000. So 65.4 into 65400. So 10th नहीं भाई. Next part. So it is 65,400 mean of the loan. Therefore, mean of loan is rupees 65,000. Question number 3 completed. अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो तब तक अच्छी तरह से. क्वेश्चन 4 में क्या दिया है देखो. द वीकली वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स. द वीकली वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस. हमें मीन ऑफ वीकली वेजेस निकालने हैं. वो वीकली वेजेस थाउजेंड्स में हैं. तो इसमें जो मल्टीप्लाई करो तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा. तो स्टेप डेविएशन मेथड ही है, सवाल ही नहीं. स्टेप डेविएशन मेथड ही रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. और हम लोगों को वो टेबल ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द टेबल. सॉल्यूशन 4. पहला है अपना क्लास. ये क्या है? वीकली वेजेस है. ये ऑफ कोर्स रुपीज में है. ओके, रुपीज में होगा. दूसरा बात, नाउ यू नो व्हाट टू डू. एक बार आपको हिंट मिल गया तो यू नो थाउजेंड्स में मतलब बड़ी अमाउंट है. सो वी आर गोइंग बाय स्टेप डेविएशन. ये पहला कॉलम. बाद में क्या होगा? कौन सा कॉलम आएगा? क्लास मार्क. मीन है का मतलब क्लास मार्क आना ही है. अब हमें ये कौन से मेथड से कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बड़ी वैल्यूज, बहुत बड़ी वैल्यूज है. बड़ी नहीं, बहुत बड़ी वैल्यूज है. थाउजेंड्स में एक्चुअली दिया है. तो हमें क्या करना है? इसको स्टेप डेविएशन में करना है. इसका मतलब पहले हमें डी आई फाइंड करना है, बाद में यू आई फाइंड करना है. तो हमें डी आई फाइंड, ये हो गया एक्स आई. अभी डी आई फाइंड करो. डी आई विल बी एक्स आई माइनस ए. एक बार वो आ गया, देन फाइंड यू आई. यू आई विल बी क्या है? डी आई माइनस जी. ये आ गया. फाइंड एफ आई. और आपका एफ आई मिल गया तो उसके बाद है एफ आई यू आई. ये आपका हो गया कॉलम सब. हमने कॉलम जो हमें मीन का मेथड है, विच प्रोसेस, कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करना, ये कंफर्म हो गया. उसके बाद जो रिक्वायर्ड कॉलम्स है वो हमने बता दी. हमें सिर्फ 2 ही कॉलम दिए नोटबुक क्वेश्चन में. हमने बाकी कॉलम अपने हिसाब से जो चाहिए रिक्वायरमेंट उस हिसाब से बना ली. अभी इंफॉर्मेशन फिल करो इस कॉलम में.
पहला है क्लास ऑफ वेजेस, ये 0 to 2000, 2000 to 4 से लेके 8000 तक जाना है। तो 0 to 2000, बाद में 2000 to 4000, बाद में 4000 to 6000, 6000 to 8000। चलो ये हो गया, और नीचे टोटल। क्लास लिख दिया, अब फ्रीक्वेंसी लिख दो, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी क्या है? 15, 35, पहला है 15, उसके बाद है 35, उसके बाद है 50, और उसके बाद है 20। ये मिलने के बाद हमें समेशन लिखना है। ऐड करो 5, 5, 10, 1 कैरी, 1, 2, 5, 10, 12। तो समेशन ऑफ FI इज 12, ये मिल गया। तो जो इंफॉर्मेशन हमें दी है वो हमने लिख दी, टोटल फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी, जो FI है, जो समेशन ऑफ FI हमें फॉर्मूले में लगने वाला है। अभी हमें क्या करना है? क्लास मार्क निकालना है, XI। आप जानते हो कैसे, एक वैल्यू निकालनी है, उसके बाद सब वो डिफरेंस जो है वो ऐड करते जाना। 2000 माइनस 0, सॉरी 2000 प्लस 0, 2000 plus 0 is 2000 divided by 2 आता है 1000। This is 1000। अभी इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2000 minus 0 is 2000, तो डिफरेंस इज 2000। अभी ऊपर से नीचे 2000 2000 ऐड करते जाओ। 1000 plus 2000 this will be 3000, 3000 plus 2000 this will be 5000, 5000 plus 2000 will be 7000। सो अपने सब क्लास मार्क आ गए। एक बार क्लास मार्क आ गया, नाउ वी हैव टू फाइंड एज्यूम्ड मीन। देखो ये 4 वैल्यूज हैं, ओके, तो आप कोई भी ले सकते हो। आई गो फॉर 5000। लेट द एज्यूम्ड मीन, इन दोनों में से एक लेना है। लेट द एज्यूम मीन A इक्वल टू 5000। ये मिलने के बाद अभी XI और DI वैल्यू निकालेंगे। तो ये 1000 माइनस 5000 कितना आता है? माइनस 4000, माइनस 4000। 3000 माइनस 5000 कितना आता है? माइनस 2000। 5000 माइनस 5000 0, एंड 7000 माइनस 5000 इज पॉजिटिव 2000। देखो कितनी बड़ी वैल्यूज है। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना और बड़ा आएगा, बाद में एडिशन करेंगे तो लाखों में जाएगा। सो व्हाट यू डू इज, अभी इसको G फाइंड करना है। वी आर फाइंड UI, therefore GCD of DI इक्वल टू G। ये क्या फाइंड करना है अपने को? G कितना? ये 2000, वो सवाल ही नहीं है। तो ये क्या होगा? 4000 डिवाइड बाई 2000 इज माइनस 2, माइनस 2000 डिवाइड बाई 2000 इज माइनस 1, 0 और ये प्लस 1। कितनी छोटी वैल्यू होगी। अभी इसको मल्टीप्लाई करो FI इंटू UI, जाएगा माइनस 30, माइनस 35, 0, 20। ये दो माइनस ऐड करो, ये आएगा माइनस 65, और ये प्लस 20, minus 45. So summation of FI UI is minus 45. अभी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, गेट द आंसर, बस इतना ही है। फॉर्मूला का इस्तेमाल करो। हियर summation of FI is 120. Summation of FI UI is minus 45. Therefore, U bar कितना? U bar will be summation of FI UI upon summation of FI. Minus 45 upon minus, sorry,
माइनस 45 अपॉन 120. तो 45 अपॉन 120 करो, 12 इंटू 10. 3 से करो, 3, 15, 3 are 45. 3 15s are 45. 3 4s are 12. 5 3s are 5 2s are. So we have 3 upon 8. 3 divided by 8 karo. Can you divide? No. So 30. 8 3s are 24. 6. 8 8s are 64. No, so 8 7s are 56. 8 5s are. तो यह आएगा आपका माइनस आफ्टर डिवीजन, माइनस मैंने 120 लिया है, माइनस 0.375. सो यू बार इज माइनस 0.375. हाईलाइट करो इसको. नाउ इरेज दैट एंड वी विल स्टार्ट we'll write, we'll find mean. Therefore mean x bar equal to a plus u bar into g. a कितना है? 5000 plus u is minus 0.375 into g is 2000. तो यह आएगा 5000 माइनस डेसिमल पॉइंट चला गया, मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो यू विल बी 375 इंटू 2. सो 5000 माइनस 2 5s are 10, 2 7s are 14 plus 1 15, 67 750. तो यह आएगा 4250 इंटू, नहीं देखा तो 1000 नहीं, इतना ही आंसर है, बिकॉज इट इज कमिंग इन बिटवीन दिस. ये एक्स बार. फाइनल आंसर हमें लिखना है द मीन अमाउंट ऑफ, क्या दिया है उन्होंने? वेजेस, वीकली वेजेस. देयरफॉर मीन वीकली wages is ₹4250. ये आंसर है. अभी हमें जाना है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 करते हैं. What is given to you is the following frequency distribution table shows the amount of aid given to flood affected families. Find the mean of the amount of the aid. चलो फाइंड करते हैं. पहले हफ्ते को जो दिया है वो इंफॉर्मेशन लिख दो. They are given us a class. तो हमें क्लास लिखना पड़ेगा. सॉल्यूशन 5. ये क्लास है. व्हाट इज दिस क्लास? ये क्लास क्या है भाई? ये है अमाउंट ऑफ एड. ये थाउजेंड्स में है मेरे ख्याल से ना. यस, अमाउंट ऑफ एड थाउजेंड्स में है.
Now this will be direct फ्रीक्वेंसी छोटी है, ऐसी बड़ी नहीं है। डायरेक्ट मेथड से करते हैं, चलो ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। विल डू इट डायरेक्ट मेथड। आप इसको यू कैन डू इट इवन बाय एज्यूम मीन। इसको एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इजी है तो कैलकुलेशन से तो डिफिकल्ट नहीं है। देखो क्लास है तो मीन है तो क्लास मार्क आएगा, उसके बाद एफ आई आएगा और उसके बाद एफ आई एक्स है। डायरेक्ट मेथड से करते हैं। राइट डाउन द वैल्यूज। 50 से चालू करना है, 100 तक जाना है, तो इससे ज्यादा ही चलेगा रहेगा। ओके 50-60, 60-70, ये डेटा कंटिन्यूअस है ना, ये डेटा कंटिन्यूअस है। 70-80, 80-90, 90-100 और ये टोटल। कॉलम लिख दी, अभी फ्रीक्वेंसी लिख दो एफ आई की। एफ आई दिया है 7, 13, 20, 7, 13, 20, लास्ट टू है 6 और 4। एडिशन कर दो। 7 + 13 is 20, 20 + 20 is 40, 46, 50। Summation of Fi। क्लास मार्क निकालो, हमें सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है, उसके बाद फटाफट ऐड करना। 60 + 50 110 डिवाइडेड बाय 2 55। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 60 - 50 is 10। सो ऊपर से नीचे ऐड करो 10 10 10 और लिखते जाओ। ये आएगा 55 + 10 65, 65 + 10 75, 75 + 10 85, 85 + 10 95। बड़ी वैल्यूज आ गई है ना, इसलिए मैंने एज्यूम मीन भी कहा था। एज्यूम मीन से करते तो भी चलता, कोई बात नहीं। चलो 55 × 7, 7 5 35, 7 5 35, 38, 13 5 65, 13 6 78, 84, 25 100, 10 कैरी, 7 2 27 140, ये 150, 6 5 30, 6 8 48, 49 50 51, 4 5 20, 9 4 36, 38। ये हो गया। ऊपर से ऐड करना है इसको। 5 5 10, 8 12, 13 14 + 14 + 8 22, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 5 18, 18 + 5 23, 23 + 3 26, 2 + 1 3। It is 3620। ये क्या है? समेशन। 3620, दिस इज
summation of fi xi. Therefore, mean x bar summation of fi xi upon summation of fi. It is 3620 divided by 50. 0 0 कैंसिल कर दो. अब ये आता है 362 डिवाइडेड बाय 5. 362 डिवाइडेड बाय 5. चलो स्टार्ट करो. 5 7 जा 12. 5 2 जा 10.0. 5 4 जा. So x bar, this is 72.4. ये thousands में भूलो मत. Therefore x bar equal to 72.4 into 1000. So 72.4 into 1000. So it is 72,400. ये है आपके aid. This will be your mean amount of aid. Question number 5 completed.